Hello everyone, welcome to another episode of Quick Talk. This is your host Farhan Ahmed and the Pakistan versus England test series have begun. The first day just concluded and I'm here to record my review for it. I'm here to break down everything that happened in the first day, and you know what? I'm just going to start off this video. There will be no more delays. There are chapters included. If you'd like to watch a particular analysis, you can go to that certain chapter, but we'll be taking things one by one, and we're going to start off with the discussion about the मुल्तान पिच. देखें मुल्तान पिच को यार, जितना भी अब हम बात करें ना, हमने देखा तो था ग्रीन टॉप बनाया गया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड था कि इसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन किया जाएगा, घास कम छोड़ी जाएगी, लेकिन आज जब मैच शुरू हुआ तो हमने देखा कि जनाब घास का तो एक तरह से कह लो कि कोई नामो निशान ही नहीं है, बहुत ही मिनिमल सी घास छोड़ी गई है, जिसका मतलब ये था जनाब कि दिस इज एन एब्सोल्यूट बेल्टर. आम जबान में बोलूं तो ये एक फट्टा पिच थी, यानी कि बैटिंग के लिए बहुत मुफीद है और बॉलर्स के लिए शायद इसमें उतना कुछ ना हो. बट वी हर्ड फ्रॉम द कमेंटेटर्स सेइंग दैट दे टॉक्ड टू द क्यूरेटर्स अबाउट द पिच एंड द क्यूरेटर्स वर सेइंग दैट द पिच will offer something for the spinners, on day 2 and 3. So if we take the words of the curators, which we should, I think, then this pitch, I think, will be very very good for the bowlers in like the day 3 and 4. But अभी की अगर हम बात करें तो यार अभी तो बड़ा फट्टा पिच थी और उसका भरपूर फायदा भी उठाया है पाकिस्तान ने, आई वुड से, क्योंकि हमारी जब स्टार्ट हुई पाकिस्तान की बैटिंग तो एक विकेट तो बड़ी जल्दी हमने लूज कर दी थी, जो कि थे साइम अयूब. वो अपनी एक गलती की वजह से आउट हो गए, लेकिन उसके बाद 8 पे पहली विकेट लूज करने के बाद शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, टू men who are short on runs, who need to silence their critics, did absolute wonderful, and they had a partnership of 253 runs, the second highest partnership for Pakistan's second wicket. And it was amazing to watch the way Abdullah Shafiq and Shan Masood were communicating with each other, the way they were having their time, just playing with the England bowlers, sort of, because they were playing all over the ground. Their stroke play was excellent. Their communication was even better. The way that they were running twos and threes, it was sort of amazing. Now that we are talking about this partnership, let's talk about Abdullah Shafiq, the man who scored 102. He scored on just 184 deliveries with 10 fours and 2 sixes. My word, it was an amazing knock, and boy did he need this. Abdullah Shafiq को ये जो नॉक था, इसकी शदीद जरूरत थी, क्योंकि भाई 10 इनिंग से ज्यादा आई थिंक हो चुकी थी और कोई 50 नहीं थी इन्होंने की हुई, और अब इन्होंने ऐसी कोई मतलब ऐसा 100 मारा ना, यू माइट थिंक यार कोई डैडी 100 नहीं है, बट मैन दिस वाज व्हाट ही नीडेड एंड दिस वाज व्हाट वी ऑल वर क्रेविंग फॉर. वी नो अब्दुल्ला शफीक, वी लव हिज टेक्निक, वी वांटेड टू सी अ गुड स्कोर कम फ्रॉम हिम, and this was the perfect opportunity for that. Playing your first test against England in Multan, he has arrived, and he has arrived to the fullest. अब्दुल्ला ने जिस तरह मतलब अपनी स्ट्रोक प्ले को मैनेज किया है, उसका एक मसला आ रहा था, वो वाइड आउटसाइड ऑफ जो बॉल जा रही थी उसको वो खेलने की कोशिश करता था, स्लिप में अजदे बैठता था. He had that sort of issue in Australia and then in Rawalpindi as well, but now you can make a case that this pitch was slightly better for batting and it wasn't offering much for the seamers early on. But man, you cannot take anything away from his great technique and his great स्ट्रोक प्ले, बिकॉज उस बंदे ने कमाल की इनिंग्स खेली है. तो उसको चाहिए था, उसको कॉन्फिडेंस अपना बहाल करना था, और वो उसको मिल गया है. देखो, उसने 50 भी छक्का मार के किया, उसने 100 भी छक्का मार के किया. दैट टेल्स यू कि उसका कॉन्फिडेंस जो यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे पहुंच गया है. तो यार ये चीज बहुत ही अच्छी थी. पाकिस्तान को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला अपने ओपनर की तरफ से. अभी तुम्हारे दोनों ओपनर जिन्हें से चल रहे, अब एक चल पड़ा है. होपफुली ही विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस एंड ही विल बी एबल टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू समथिंग मोर फॉर पाकिस्तान, एंड साइम विल hopefully get more runs as well. अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स के बाद अब हम बात करते हैं जनाब उस बंदे की जिस पे बात करने के लिए मैं बहुत बेताब हूं. जब मैं मैच देख रहा था तब भी मुझे ये था कि यार इसके बारे में तो मैंने बात करनी है, एंड आई ऑलरेडी मेड अप सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स इन माय माइंड. अरे यार, मैं बात करने वाला हूं कप्तान शान मसूद की. 151 रन स्कोर्ड ऑफ जस्ट 177 डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ 13 फोर्स and 2 sixes. Boy, it was a classic Shan Masood knock, and he nailed it out of the park. And did he need that? Man, it was amazing. बंदे को बड़ी बहुत ही अशद जरूरत थी. अब्दुल्ला शफीक से तो कई गुना आगे इसकी जरूरत थी, क्योंकि भाई पाकिस्तान का कप्तान है, रन नहीं आ रहे थे. 4 साल पहले इसकी आखिरी टेस्ट सेंचुरी आई थी, आई थिंक वो भी
England के against थी, but now he needed it. It was the time to justify his place in the 11 because he had an average of 28 or less. He played a great innings, a great captain's knock, and you know what? He scored a daddy 100, 151, और जिस तरह वो चल रहा था, looked like he was gonna go on to score 200. There was some sort of fitness issues. He had like cramps or something, and that caused him to get out. Sure, you can make a case here as well कि यार ये जो विकेट थी ये उतनी साजगार नहीं थी बॉलर्स के लिए और ये बैटर्स के लिए बहुत अच्छी थी, फट्टा विकेट थी, जनाब रोड थी, जैसी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं. बाय द वे, दिस वाज नॉट अ रोड, दिस वाज good for batting but not a road. The road, if you want to see that, go to the 2022 tour of England to Pakistan when we played the first test match at Rawalpindi. That was an absolute road. Okay, this was not a road, so stop with that road word. आप फट्टा भी एक तरह से मतलब फनी वे में कह सकते हो, लेकिन डोंट से दैट विद लाइक थ्रेटनिंग टोन या फिर मॉकिंग एक्सेंट के साथ आप मत बोलो कि ना भी फट्टा बना दिया और ये कर दिया वो कर दिया. ऐसी बात नहीं थी. Alright, but coming back to the point, Shan Masood really needed this. He had to justify his place, he had to justify his skills, his talent, and he had to like make sure that he was staying as the captain, because there were a lot of rumors that if he didn't perform in this particular series, he was gonna be removed from the captaincy. So he had to show some guts, show some big scores, which he has done, and I would like to think that he will do that more frequently now that he has achieved 100. एक चीज जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है और यहाँ पे बात करनी उसकी बनती है, वो है जनाब ड्रेसिंग रूम का माहौल उस वक्त जब शान मसूद ने 100 मारा. कि आप देखें जब शान मसूद ने 100 रन कंप्लीट किए तो ड्रेसिंग रूम में सब ही कितने खुश थे और कितनी हर एक बंदे के चेहरे पे स्माइल थी, हर बंदा तालियां बजा रहा था, कोचेस भी, प्लेयर्स भी, हर बंदा बहुत खुश था. यही होता है जब आपका कैप्टन फ्रंट से लीड करता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है, और ये पाकिस्तान को बड़ी अशद जरूरत थी, क्योंकि 5 मैचेस जो शान मसूद ने अपनी कप्तानी में खेले हैं, 2-3 जगह पे 50s आई हैं और 50s भी के बाद उसने अपना जो विकेट था वो थ्रो कर दिया. ही नीडेड दिस, ही नीडेड अ बिग नॉक टू इंस्पायर द ड्रेसिंग रूम, टू इंस्पायर द यंग बॉयज एंड से के बॉय मैं कर रहा हूं ना, आप लोगों ने भी जाके करना है, आपने भी अपना पार्ट जो है ना वो टू द फुलेस्ट प्ले करना है. So yeah, Abdullah Shafiq played really well, Shan Masood played exceptionally well. But now let's talk about the elephant in the room, and that is none other than Babar Azam. Babar Azam scored just 30 runs, और LBW हो गया जब न्यू बॉल मिली क्रिस वोक्स को, एक थोड़ी सी स्विंग हुई, पैड पे बॉल लगा, रिव्यू भी किया क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई डाउन द लेग साइड जा रहा है. और बाय द वे मुझे भी लग रहा था, जब मैंने वो देखा ना, मुझे लगा कि यार नहीं ये तो निकल जाएगी बॉल, लेकिन वो नहीं निकली, वो सीधी विकेट में लग रही थी. तो या ही हैड अनदर फेलियर एंड इट इज व्हाट आई थिंक इट्स द 17th फेलियर कंसेक्यूटिव. आई जस्ट गॉट टू से जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, back this player. I said to you in the last video, which was my prediction video for the England series, बाबर आजम का 100 आ रहा है, और अगर 100 नहीं भी आएगा तो 50 जरूर करेगा. देखो मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ. 6 इनिंग्स है इन टोटल, एक इनिंग उसकी खत्म हो गई है, 5 रह गई हैं. Just be patient, he will get back and he will start scoring runs and he will score 100 as well. Don't criticize him right now. Sure, you can argue what his style of playing was and everything, but you know what, man, it was a time to just see off, क्योंकि हमारे जो लास्ट थर्ड सेशन था उसमें हमारी ऑलरेडी 2 विकेटें गिर चुकी थी, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद आउट हो चुके थे. वी नीडेड a new pair to settle in and just stay there till the day was over. But एक चीज हुई कि न्यू बॉल आई और उसके बाद बाबर थोड़ा सा स्ट्रगल किया, हालांकि चौका भी मारा, कवर ड्राइव मारी, बड़ी जबरदस्त कवर ड्राइव थी. लेट द गाय ब्रीथ, ही जस्ट रिजाइन्ड फ्रॉम कैप्टनसी, ही हैज बीन गोइंग थ्रू अ लॉट, he has worked on his fitness, he has worked on his technique. Let the guy be. I'm sure he will show up eventually and it will be sooner rather than later. थोड़ी सी इंग्लैंड की बात कर लेते हैं. तो यार इंग्लैंड की बॉलिंग काफी बेबस नजर आई पाकिस्तान के सामने. इंग्लैंड के बॉलर्स ने काफी थोड़ी सी वेवर्ड लाइन एंड लेंथ भी अपनाई, लेकिन आई थिंक इट वाज on purpose. They were trying to lure the players into playing rash shots and get out, but the Pakistan batters were exceptional. So Gus Atkinson took 2 wickets, दोनों ओपनर्स को डिसमिस किया बंदे ने. उसके अलावा जैक लीच ने शान मसूद का कैच पकड़ा, कॉटन बॉल था वो. फिर क्रिस वोक्स ने जो नया न्यू बॉल मिला था, दूसरा न्यू बॉल, उसके साथ बाबर आजम को उसने LBW कर दिया और इस तरह 4 विकेटें गिर गई पाकिस्तान की. पाकिस्तान ने अभी जो अपना डे एंड किया है वो बाय द वे 328 पे खत्म किया है. 328 फॉर 4 विकेटें गिर चुकी हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान की। सऊद शकील अभी वहीं पे हैं, 35 रन स्कोर किए हैं 72 गेंदें खेल के। ही इज नॉट आउट, ही विल कंटिन्यू फ्रॉम राइट हियर टुमारो मॉर्निंग। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है, और पाकिस्तान अगर इसके 35 कन्वर्ट हो जाते हैं 100 में, दे विल बी क्वाइट कंफर्टेबल एंड दे विल बी लाइक वी आर इन द गेम नाउ, वी कैन डिक्लेयर, वी कैन गो ऑन, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू बिकॉज नाउ वी हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग दिस गेम। एंड या इट्स अ बिग डे टुमारो, क्योंकि सऊद शकील ने आना है और उसके बाद नसीम शाह उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वी ऑल नो ही इज गोइंग टू गो ऑफ रियल सून। और उसके बाद रिजवान है, आपके पास सलमान अली आ गए, फिर आमिर जमाल है। सो प्लेंटी ऑफ बैटिंग स्टिल टू कम एंड आई बिलीव पाकिस्तान विल गो अराउंड 500. I have a feeling that Pakistan will end up declaring at 530 something. All right, it's all for today. This was the review of Pakistan versus England फर्स्ट टेस्ट मैच डे 1। आपको आज का डे का जो प्ले था वो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो मुझे, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिव होता हूँ, स्पेशली ट्विटर, वहाँ पे मैच की अपडेट्स भी दे रहा होता हूँ। उसके अलावा जो खबरें आ रही होती हैं उन पर भी रिएक्ट कर रहता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी एक एक्टिव सीन चल रहा होता है। इसके अलावा अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं ये जो 5-6 दिन का खेल होगा टेस्ट मैच का, हर डे के एंड पे एक रिव्यू वीडियो पोस्ट करूंगा, और जब पूरा मैच कंक्लूड हो जाएगा उसके बाद एक मैच रिव्यू की वीडियो आएगी जिसमें हम पूरे मैच की बात करेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत हुआ, किसके लिए क्या ठीक हुआ। सो काफी ज्यादा कंटेंट आने वाला है आगे चल के। सो इसलिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, turn on the bell icon so that you won't miss anything. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.